ایران ہے، پھر سینٹرل ایشیا، افغانستان میں امن آتا پھر سینٹرل ایشیا تک. یہ جو لوکیشن ہے اس کا صرف فائدہ ہم تب اٹھا سکتے ہیں جب ہمارے ریجنل پیس ہو. ہمارا ایشو بیسکلی کشمیر ایشو ہے، کشمیریوں کو جو ان کا رائٹ ہے اگر وہ رائٹ دیتے ہیں تو یہ ہندوستان کے لیے بھی اتنا فائدہ مند ہے جتنا ہم پاکستان کے لیے. علاقائی امن کے بغیر خطے میں خوشحالی کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا. ہمسائے ممالک سے خوشگوار تعلقات خارجہ پالیسی کا حصہ ہیں. کشمیر کے بنیادی تنازع کا سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حل ضروری ہے. افغانستان میں پائیدار امن اور مسئلے کے سیاسی حل کے خواہاں ہیں. وزیر اعظم عمران خان کا اسلام آباد سیکورٹی ڈائیلاگ کے افتتاحی سیشن سے خطاب. آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی پر یقین رکھتے ہیں. حکومت بلا تفریق احتساب کی پالیسی پر عمل پیرا ہے. وکلاء برادری کا انصاف کی فراہمی میں اہم ترین کردار ہے. وزیر اعظم عمران خان کی لاہور میں وکلاء تنظیموں کے عہدیداروں سے گفتگو. یکساں نصاب تعلیم کے نفاذ سے معاشرے میں توازن قائم ہوگا. ملک کی ترقی کے لیے نوجوانوں کی صلاحیتوں کو بروئے کار لانا ہوگا. طلباء کو جدید دور کے تقاضوں سے عہدہ برا ہونے کے لیے تعلیم کے ساتھ اپنی تجزیاتی مہارت کو بھی بہتر بنانا چاہیے. صدر ڈاکٹر عارف الوی کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب. ایئر مارشل ظہیر احمد بابر پاک فضائیہ کے نئے سربراہ مقرر. 19 مارچ کو موجودہ ایئر چیف مشاہد انور خان کی جگہ ذمہ داریاں سنبھالیں گے. چین سے کرونا ویکسین کی مزید 5 لاکھ خوراکیں پاکستان پہنچ گئی. اب تک 12.5 لاکھ کرونا ویکسین موصول. ملک میں وائرس سے مزید 61 افراد جان کی بازی ہار گئے. 2351 نئے کیسز رپورٹ. نواز شریف وطن واپس آنا چاہیں تو 24 گھنٹے میں سفری دستاویزات فراہم کر سکتے ہیں. پی ڈی ایم کو ہر محاذ پر شکست ہوئی. اپوزیشن احتجاجی سیاست کے بجائے الیکشن اصلاحات کے لیے تجاویز دے. وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کی میڈیا سے گفتگو. مذہب کے نام پر تشدد اور نفرت کے خلاف ہیں. مذاکرات، مکالمہ اور ہم آہنگی ہی آگے بڑھنے کی راہ ہے. عالمی برادری کی جانب سے یکجہتی اسلاموفوبیا کے افریت کو کچلنے کے لیے اہم سنگ میل ثابت ہوگی. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا OIC رابطہ گروپ سے ویڈیو لنک خطاب. مقبوضہ کشمیر میں محاصروں اور تلاشی کی کارروائیوں کے آڑ میں قتل و غارت کا بازار گرم. کیمیائی ہتھیاروں اور دھماکہ خیز مواد سے گاؤں کے گاؤں نظر آتش کرنا روز کا معمول. عالمی برادری مقبوضہ جموں و کشمیر میں جنگی جرائم روکنے کے لیے مداخلت کرے. کل جماعتی حریت کانفرنس. بھارت میں ظالمانہ زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کے احتجاج میں تیزی. دلی نوئیڈا بارڈر بلاک کرنے کی دھمکی. عوام کو مودی سے نجات دلانے کے لیے پورے بھارت میں منظم مہم چلائی جائے گی. کسان رہنماؤں کا اعلان. بھارت میں جمہوریت اور انسانی حقوق کی بگڑتی صورتحال پر امریکی کانگریس کی رپورٹ میں اظہار تشویش. نئی دلی دنیا کا غلیظ ترین شہر قرار. بھارتی دارالحکومت نے مسلسل 30 سال فضائی آلودگی، تعفن اور غلاظت میں پہلا نمبر برقرار رکھا. گزشتہ ایک سال کے دوران گندگی اور آلودگی کے باعث 56,000 افراد ہلاک ہو چکے ہیں. فضائی آلودگی سے متعلق عالمی ادارے کی سالانہ رپورٹ. اقتصادی رابطہ کمیٹی کی 3 لاکھ میٹرک ٹن گندم درآمد کرنے کی منظوری. نیا پاکستان ہاؤسنگ اینڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی سمری پر تفصیلی غور. پہلے مرحلے میں 1 لاکھ گھروں کی تعمیر کے لیے اہلیت کے طریقہ کار اور سبسڈی کی ادائیگی کی منظوری. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان برقرار. انڈیکس میں 593 پوائنٹ کا اضافہ. 100 انڈیکس 45,450 کی سطح پر بند. ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر مزید مستحکم. انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت خرید 156 روپے جبکہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت خرید 155 روپے 57 پیسے.
دورہ جنوبی افریقہ کے لیے اعلان کردہ قومی وائٹ بال اسکواڈ کی کووڈ-19 ٹیسٹنگ 34 افراد کے ٹیسٹ منفی، ایک کھلاڑی کا ٹیسٹ مثبت آ گیا۔ منفی ٹیسٹ رپورٹ والے کھلاڑی کل لاہور پہنچ جائیں گے۔ اسکواڈ کا تربیتی کیمپ جمعے سے قذافی اسٹیڈیم میں شروع ہوگا۔ اور پی ایس ایل فرنچائز پشاور زلمی کی جانب سے اسلام آباد میں زلمی کیمپ کے فائنل راؤنڈ کا انعقاد۔ کیمپ کے ذریعے نیا چیلنج سامنے آیا، شارٹ لسٹ کرکٹرز کے ساتھ سیشن کر کے بھرپور لطف اندوز ہوئے۔ ڈیرن سیمی اور ہاشم آملہ کی میڈیا سے گفتگو۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ علی جنت۔ میں ہوں آسماء اقبال۔ نیوز ہیڈ لائنز اب جان چکے ہیں، خبروں کی تفصیل جانیے گا ایک بریک کے بعد۔ BOP تقوی SME فائنانسنگ، کاروبار، خام مال، تیار پروڈکٹس اور کاروباری جگہ خریدنے یا تعمیر کرنے کے لیے ربا سے پاک فائنانسنگ۔ BOP تقوی اسلامک بینکنگ، ایک یقین ایک ایمان۔ ویلکم بیک۔ خبرنامے میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ علاقائی امن کے بغیر خطے میں خوشحالی کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ اسلام آباد سیکورٹی ڈائلاگ کے افتتاحی سیشن سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ ہمسائے ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات سے ہی ہم اپنی جغرافیائی اہمیت سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ اس کی تفصیل ہمیں بتائیں گے محمد نوید اظہر۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ نیشنل سیکیورٹی کو صرف دفاعی نقطہ نظر سے نہیں دیکھا جا سکتا، اس کے اہداف بہت وسیع ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل سیکیورٹی پر ڈائیلاگ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان خطے خصوصاً افغانستان میں امن کا سب سے بڑا داعی ہے، کیونکہ اس سے خطے کی صورتحال بدل جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ نئی امریکی انتظامیہ بھی افغانستان میں امن کو اہمیت دے رہی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہم بھارت سمیت تمام ہمسایہ ملکوں کے ساتھ بہتر تعلقات کے خواہاں ہیں۔ ایک طرف ایران ہے، انرجی ادھر سے ہمارے ڈیفیشنسیز پوری ہو سکتی ہیں، پھر سینٹرل ایشیا، افغانستان میں امن آتا تو سینٹرل ایشیا تک۔ تو یہ جو لوکیشن ہے اس کا صرف فائدہ ہم تب اٹھا سکتے ہیں جب ہمارے ریجنل پیس ہو۔ چائنا سے تو ہمارے بہترین تعلقات ہیں، افغانستان بڑی دیر کے بعد ایک امید ملی ہے پیس کی۔ ہم نے پوری کوشش کی ہندوستان سے کہ ہم اپنے جو بھی ایشوز ہیں، اور ہمارا ایشو بیسکلی کشمیر ایشو ہے، ہم اس کو کیسے ڈائلاگ کے ذریعے حل کریں اور اپنی ایک سویلائزڈ نیبرز کی طرح اپنی ریلیشن شپ قائم کریں۔ انفارچونیٹلی 5 اگست آ گیا اور اس سے بہت بڑا ایک دھچکا پڑا اور ہمارا ٹوٹل بریک ڈاؤن ہو گیا دونوں ملکوں کے بیچ میں۔ ابھی بھی امید ہم یہ رکھتے ہیں کہ اگر وہ کشمیریوں کو جو ان کا رائٹ ہے، اگر وہ رائٹ دیتے ہیں تو یہ ہندوستان کے لیے بھی اتنا فائدہ مند ہے جتنا ہم پاکستان کے لیے۔ ہندوستان کو بھی فائدہ اس لیے ہے کہ وہاں بہت غربت ہے، تو سب سے زیادہ اگر غربت کو دور کرنا ہے تو ہماری ٹریڈنگ ٹائز اور ہماری اکنامک ٹائز اسٹرانگ ہو، ہماری ریجنل کنیکٹیوٹی بڑھے، ہندوستان کو فائدہ وہ بھی کنیکٹ ہو جاتا ہے سینٹرل ایشیا تک۔ ہم تو اپنی کوشش کریں گے لیکن ہندوستان کو پہلا قدم لینا پڑے گا، کیونکہ 5 اگست کے بعد اب جب تک وہ پہلا قدم نہیں لیتے تو ہم انفارچونیٹلی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ملک کو مالیاتی خسارے کا سامنا رہا، جس سے ہماری کرنسی متاثر ہوئی۔ کرنسی کی قدر کم ہونے سے مہنگائی بڑھی اور عام آدمی متاثر ہوا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دفاع سمیت غذائی تحفظ، ماحولیات اور معیشت بھی قومی سلامتی کے لیے انتہائی اہم ہیں۔ فوڈ سیکیورٹی کے اوپر انشاءاللہ اپریل میں نئی سوچ لے کے آ رہے ہیں کہ ہم نے کیسے پاکستان کو فوڈ سیکیور کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اتنی امپورٹنٹ ہماری اکانومی ہے، اور جو اب تک ہماری ایک ایلیٹسٹ سسٹم رہا ہے جس نے صرف ایک چھوٹے سے ایلیٹ کو کیٹر کیا ہے، یہ سب سے بڑی پیراڈائم شفٹ ہے کہ ہم نے وہ کرنا ہے جو ایکچولی چائنا نے کیا تھا۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ تقریباً ہم آدھی آبادی سے بھی زیادہ کو ٹارگیٹڈ سبسڈیز دیں گے۔ ہر گھر کو اگر گندم پہ سبسڈی دینی چاہیے تو اس کو ڈائریکٹلی دیں، اگر گھی پہ دینے چاہتے ہیں
फिर किसानों को अगर हमने फर्टिलाइजर पर सब्सिडी देनी है तो उनको कैसे दे सकते हैं, डायरेक्ट पहुंचा सकते हैं। ये इंशाल्लाह एक रेवोल्यूशन होगी और इसकी सबसे बड़ा मकसद ये होगा कि हमने लोगों को गुर्बत से उठाना है। वजीर आजम के मुआवने खसूसी मोहित यूसुफ ने कहा कि डायलॉग के आगाज से कौमी सलामती को दरपेश इश्यूज को समझने और इसके हल में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि डायलॉग से पॉलिसी साजों, रिसर्च स्कॉलर्स और नई नस्ल को फायदा होगा। वजीर आजम इमरान खान ने नेशनल सिक्योरिटी डायलॉग एडवाइजरी पोर्टल का इजरा भी किया। ये पोर्टल नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन ने तैयार किया है। इसके जरिए 100 से ज्यादा थिंक टैंक्स और अकेडमियों को पॉलिसी साजी में शामिल किया जा सकेगा। पोर्टल के हवाले से वजीर आजम ने कहा, यह सही समत में एक कदम है जिससे बेहतर मुशावरत और कौमी सलामती के मौजू पर जामे पॉलिसी साजी मुमकिन होगी। मोहम्मद नवीद अजहर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म इमरान खान से पंजाब के वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने लाहौर में मुलाकात की है। वज़ीर आला ने सूबे के इंतजामी उमूर और तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ्त के हवाले से वज़ीर आज़म को आगाह किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हिदायत की है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों और नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ बर वक्त इक़दाम करके आइंदा रमज़ान मुबारक में आवाम को सस्ते दामों अशिया की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म ने पंजाब हुकूमत को आवाम को रिलीफ देने, फलाह व बहबूद करने से मुतालिक इक़दाम उठाने की हिदायत की है। वज़ीर आज़म के दौरे लाहौर की तफसील इकरामुल्लाह महसूद से। लाहौर में इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ीर आला पंजाब को हिदायत की कि वफाक की सतह पर सूबे में भी कोई भूखा ना सोए प्रोग्राम जिले सतह पर भी मुतारिफ कराया जाए। मीडिया ब्रीफिंग में इतलात के बारे में वज़ीर आला की मुआवने खुसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने बताया कि वज़ीर आज़म इमरान खान को सूबे में महंगाई, अमन अमान समेत मुख्तलिफ उमूर पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला पंजाब ने सूबे में हुकूमत की तमाम तरजीहात से आगाह करते हुए बताया कि हुकूमत तरक्की और खुशहाली के साथ जुड़े मंसूबों की तकमील और महंगाई के खिलाफ निबर्द आजमा है। वजीर आजम को तफसीली चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने ब्रीफिंग दी। उस ब्रीफिंग में बताया कि पंजाब में महंगाई जो है वो उसकी शरह कम रही। वजीर आला उस्मान बुज़दार साहब ने वजीर आजम को उन इकदाम से आगाह किया जिसके तहत ओवरऑल सूबे के अंदर जो आटे की फराहमी है थ्रू फ्लोर मिल्स वो 860 रुपए पे फिक्स की गई। हुकूमत पंजाब ने इस मद में 60 अरब से जायद की सब्सिडी पे की। हुकूमत पंजाब जो है वो 7 अरब की रमजान पैकेज में सब्सिडी देने जा रही है। आईजी पंजाब को ये हदायत दी कि जो 3 मराहल में कब्जा ग्रुपों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है उनको और ज्यादा मौसर किया जाए। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान से एडवोकेट जनरल पंजाब की सरबराही में वकला के वफ्द ने भी मुलाकात की। वफ्द में पंजाब के मुख्तलिफ बार्स के नुमाइंदे शामिल थे। वज़ीर आज़म ने कहा कि वकला की कानून और आईन की बालादस्ती के लिए जारी जद्दोजहद काबिल तहसीन है। वज़ीर आज़म ने यकीन दिलाया कि वकला कम्युनिटी को हेल्थ कार्ड समेत सस्ते हाउसिंग स्कीम में कोटा दिया जाएगा। वज़ीर आज़म ने उन तमाम वकला को जो यंग लॉयर्स हैं, जो तंजीमें हैं जो मुल्क में रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े हों और जो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के लिए काम कर रहे हैं उनकी भी जदोजहद को सराहा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सूबाई हुकूमत को ये भी हिदायत की कि महंगाई की शरह को मजीद नीचे लाया जाए और शहर की सफाई पर तवज्जो देकर इसके असर हुसन को बहाल किया जाए। इकरामुल्लाह महसूद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। नाज़रीन, सदर डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं कि अखलाकियात और किरदार साजी कौमों के आगे बढ़ने की सीढ़ी है। हमें नौजवानों को तालीमी मौक़े फराहम करने के साथ साथ उनकी ज़हनी सलाहियतों को दुरुस्त सम्त में परवान चढ़ाने के लिए इक़दाम करना होंगे। सदर मुमलिकत इस्लामाबाद में मुल्क भर में मुख्तलिफ बोर्ड्स में इंटरमीडिएट के इम्तहानात में नुमाया पोजीशन लेने वाले तलबा को इसनाद देने की तकरीब से खिताब कर रहे थे। तफसील जानेंगे आगा मसूद खालिद से। होनहार तलबा के एजाज में मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि किसी भी कौम का असल असासा तालीम और सोच की तब्दीली है। सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। इखलाकियात और किरदार साजी जैसी इक़दार को हमें अपना शार बनाना होगा। इस वक्त पाकिस्तान का फ्यूचर दरख्शां है, बहुत अच्छा है। एक और चीज ज़हन में रखना, ये जो कैरेक्टर बिल्डिंग है इसके बगैर बड़ी कौमें नहीं बनती। सच बोलो, एहतमाम करो इस बात का कि माशरे के अंदर कौम के साथ वफादारियां हों, कम्युनिटी के अंदर वफादारियां हों।
یہ جو جھوٹ اور چوری اور کرپشن کا ماحول ہے یہ وہ گھن کی طرح کھاتا ہے. نئے پاکستان کی تشکیل ہے, اس کے اندر 2 پلر سب سے بڑے, ایک ہے تعلیم اور ایک ہے صحت کا اہتمام. صدر مملکت نے کہا کہ تعلیم کے حصول کے علاوہ طلبہ کی تجزیاتی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا ضروری ہے. انہوں نے کہا کہ جسمانی صحت کے ساتھ ذہنی نشو و نما بھی اہمیت کی حامل ہے. طلبہ معاشرے کی مثبت سوچ کو پروان چڑھانے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں. آپ کی جو سکلز ہیں وہ ہیں اس میموری کا تجزیہ کرنا, اس کو اینالائز کرنا, اس کے متعلق سوچنا. اصل چیز یہ میموری صرف آپ کی تیاری ہے ٹو میک گڈ ڈیسیشنز جس شعبے میں بھی آپ جائیں. انفارمیشن کی اہمیت ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ اپنی دماغوں کو بھی آپ اسی انداز سے تیز کریں. اگر ہم نے اسکلز پر توجہ نہیں دی اور تعلیم پر کسی وجہ سے توجہ نہیں دی تو اب ہمارا کام یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ را لیبر ہو ہم اسکلڈ بیس ایجوکیشن کریں. جو نئی ٹیکنالوجیز آئی ہیں وہ جو ریڈنڈنٹ انسانوں کے دماغ کو اوورٹیک بھی کر سکتی ہیں. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے کہا کہ ہماری ترجیح ملک میں یکساں تعلیمی نصاب کو یقینی بنانا ہے اور 2 کروڑ سے زائد ایسے بچوں کے لیے تعلیمی سہولیات فراہم کرنا ہے جو کسی بھی وجہ سے اسکول نہیں جا پاتے. توجہ صرف اس چیز پہ تو ضرور دینی ہے کہ بچے اسکول میں آئیں, لیکن ساتھ ساتھ ہم نے کوالٹی آف ایجوکیشن کا بھی خیال کرنا ہے کہ بچوں کو جو ہم پڑھا رہے ہیں وہ کیوں نہیں ان کو ابزارب کر رہے, کیوں نہیں اس کو دیکھ رہے. کیا یہ رٹا سسٹم جو اتنی دیر سے چل رہا ہے یہی چلتا رہے گا؟ تو اس سلسلے میں جو ہمارا یکساں تعلیمی نصاب ہم لے کے آ رہے ہیں, ہم نے کانشیسلی کوشش کی ہے کہ اس میں ہم ایسے ایلیمنٹس لے کے آئیں کہ جس میں بچوں کو صرف یاد نہ کرنا ہو بلکہ وہ اس میں ان کی سمجھ میں اضافہ ہو. سیکرٹری IBCC غلام علی ملا نے کہا کہ نمایاں کارکردگی کے حامل طلبہ کو سراہنے سے مسابقت کی فضا پیدا ہوتی ہے. صدر مملکت نے ملک بھر سے آئے مختلف بورڈز کے سال 2020 کے سالانہ امتحانات میں نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ اور طالبات میں اسناد بھی تقسیم کی. عہد حاضر میں ترقی کا حصول تعلیم کے بغیر ممکن نہیں. یہی وجہ ہے کہ حکومت ملک میں یکساں تعلیمی نصاب اور اعلیٰ تعلیم کے فروغ کے لیے پرعزم ہے. آغا مسعود خالد, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, ایوان صدر, اسلام آباد. ناظرین, ایئر مارشل ظہیر احمد بابر کو پاک فضائیہ کا نیا سربراہ مقرر کیا گیا ہے. پاک فضائیہ کے نئے سربراہ 19 مارچ کو اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں گے. ظہیر احمد بابر کو موجودہ ایئر چیف مجاہد انور خان کی جگہ تعینات کیا گیا ہے. صدر ڈاکٹر عارف الوی نے پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان کو نشان امتیاز سول سے نوازا. اس سلسلے میں ایوان صدر میں خصوصی تقریب ہوئی. مجاہد انور خان کو یہ اعزاز پیشہ ورانہ خدمات اور آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ میں کامیابی کے ذریعے قومی مورال بلند کرنے کے اعتراف کے طور پر دیا گیا. تقریب میں وفاقی کابینہ کے اراکین, اعلیٰ سول اور عسکری حکام نے شرکت کی. وزیر اعظم عمران خان سے پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان نے اسلام آباد میں الوداعی ملاقات کی ہے. وزیر اعظم نے قوم کے لیے شاندار خدمات پر مجاہد انور خان کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے نیک خواہشات کا اظہار کیا. اب آپ کو بتائیں کہ ملک بھر میں کرونا ویکسین لگانے کا عمل جاری ہے اور چین سے ویکسین کی مزید 5 لاکھ خوراکوں پر مشتمل دوسری کھیپ پاکستان پہنچ گئی ہے. اسی بارے میں تفصیل بتا رہے ہیں عمران منصف خان. پاکستان فضائیہ کا خصوصی طیارہ چین سے ویکسین لے کر نور خان ایئر بیس پہنچا, جہاں وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان موجود تھے. اس موقع پر تقریب سے خطاب میں ڈاکٹر فیصل سلطان نے چین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ یہ پاکستان اور چین کے درمیان 70 سالہ سفارتی تعلقات اور دوستی کا بھرپور عکاس ہے. انہوں نے کہا کہ وبا پر قابو پانے کے لیے ویکسین اہم ہے, لیکن جب تک ساری آبادی کی ویکسینیشن نہ ہو جائے بیماری کا خطرہ اپنی جگہ موجود رہتا ہے. 4.25 لاکھ کے قریب ڈوزز ہماری ویکسینیشن کی ہو چکی ہیں. ویکسین کی فراہمی کے لیے جو پرچیز کا پروسیس ہے اس کا بھی آغاز ہو گیا اور اس کے ذریعے بھی جو ہے ویکسینز آئیں گی اور جو آئیں گی ہم آپ کو اس کی تعداد اور اس کی تاریخ کے بارے میں بتاتے چلے جائیں گے. ہماری جو آرگنائزیشنز ہیں جو اس ایفرٹ میں شامل ہیں, چاہے وہ امیونائزیشن کا پروگرام ہے, چاہے وہ ہمارے انفارمیشن سسٹمز کو ڈیولپ کرنے والے لوگ ہیں, چاہے وہ ہمارے ویکسینیشن سینٹرز کو اتنے زبردست طریقے سے جو چلا رہے ہیں اور اس میں اتنی شاباش مل رہی ہے,
असल में तो शाबाश के हकदार वो तमाम लोग हैं जो इसमें अपना जरा सा भी हिस्सा डाल दें। चीनी सिफारत खाने के मिनिस्टर कौसर शेख उशियांग ने कहा कि पाकिस्तान पहला मुल्क है जिसे चीन की जानिब से सबसे ज्यादा वैक्सीन अतिया की गई। I do believe with donation and introduction of the Chinese vaccine and more people get inoculated, the COVID-19 pandemic in Pakistan will be effectively contained in the coming future. साइनोफार्म वैक्सीन 2 खुराकों पर मुश्तमिल है। पहली खुराक के 21 दिन के बाद दूसरी खुराक दी जाती है। माहिरीन सेहत के मुताबिक साइनोफार्म वैक्सीन कोरोना से बचाव में तकरीबन 80% तक मौसर है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि वैक्सीन की दोनों खुराकें लगाई जाएं। चीन से मिलने वाली कोरोना वैक्सीन की दूसरी खेप पाकिस्तान और चीन के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात और गहरी दोस्ती का मुंह बोलता सबूत है, लेकिन कोरोना वबा से बचाव के लिए हम सबको हुकूमत की मुतय्यन करदा SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाना होगा। इमरान मस्तफ खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। नाज़रीन, पंजाब में अब तक 1.5 लाख से ज्यादा अफराद की वैक्सीनेशन हो चुकी है। इसी बारे में आपको दिखाएंगे हुमायूं सजफ की रिपोर्ट। कोरोना वैक्सीन मुहिम के दौरान पंजाब में अब तक 98,000 से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स को कोरोना की पहली जबकि तकरीबन 24,000 को दूसरी डोज भी दी जा चुकी है, जबकि दूसरे मरहले में 60 साल से ज्यादा उम्र के तकरीबन 34,000 अफराद कोरोना वैक्सीन लगवा चुके हैं। वैक्सीन लगवाने के लिए अवाम की रजामंदी और दिलचस्पी हुकूमत पर एतमाद का मजहर है। जरूर वैक्सीनेट कराएं। यहाँ पर पूरा अमला बहुत कोऑपरेटिव है एंड आई फील प्राउड कि हमारे मुल्क में हमारी गवर्नमेंट हमें कवरेज दे रही है। यहाँ पर आकर देखा दिल खुश हुआ, बहुत अच्छा इंतजाम किया हुआ है। मैंने आज अपनी ग्रैंडफादर की वैक्सीनेशन कराई है, वो अपनी 80s में है, और हम अभी इधर ही लाहौर एक्सपो सेंटर आए थे और ये काफी ऑर्गेनाइज जगह है। हुकूमत के पास कोरोना वैक्सीन वाफिर मिकदार में मौजूद है, जो मरहलावार आवाम को बिला मुआवजा लगाई जा रही है। हेल्थ वर्कर्स को अस्पतालों जबकि मुअम्मर अफराद को खसूसी सेंटर्स में वैक्सीन लगाई जा रही है ताकि उन्हें किसी भी किस्म के इन्फेक्शन से बचाया जा सके। हमारे पास सफिशिएंट वैक्सीन है जो कि 60 इयर्स एंड अबव और सब्सिक्वेंटली इससे नीचे उम्र के लोगों को भी लगाई जाएगी। सब लोगों को बारी के हिसाब से अपना इंतजार करना चाहिए। हर बंदे को वैक्सीन लगवाने का मैसेज जो है वो एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के बाद आ रहा है। हम रिवर्स एज ऑर्डर में ये सिस्टम चला रहे हैं, यानी कि जिन लोगों की उम्र ज्यादा है उनका पहले हक है कि वो अपने आप को वैक्सीनेट कराएं। 70 साल से ज्यादा उम्र अफराद की सहूलत के लिए रजिस्ट्रेशन और पिन कोड की शर्त खत्म कर दी गई है और वो सुबह 8 से शाम 8 बजे तक किसी भी सेंटर पर सिर्फ शनाख्ती कार्ड दिखाकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। हुमा सदफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, लाहौर। पंजाब में कैसे हाल है आपने जाना, कराची चलते हैं जहां आर्ट्स काउंसिल में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर अजरा फिजोह ने कहा है कि वायरस से बचाव का वाहिद हल एहतियात और वैक्सीनेशन है। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन के लिए शहरियों को खुसूसी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। शहरियों से अपील है कि हिफाजती इक़दाम पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। कोयटा में ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी ने कहा कि सूबे में कोरोना केसेस की शरह में इजाफा हो गया है। उन्होंने कहा कि कोरोना SOPs पर अमल दरामद के सिलसिले में कोई रियायत नहीं होगी। लियाकत शाहवानी ने बताया कि बलूचिस्तान में पहले मरहले में 16,000 फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जबकि दूसरे मरहले में 60 साल और इससे ज्यादा उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन जारी है। मुल्क में कोरोना से मजीद 61 अमवात के बाद कोरोना से जाँ बहक होने वालों की मजमूई तादाद 13,656 हो गई है और कोरोना की नई लहर में मुतासिर अफराद की तादाद में भी इजाफा हो रहा है। और गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क में 2,351 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 38,799 अफराद के टेस्ट किए गए। कोरोना वायरस की नई लहर से हलाकतों की तादाद में गैर मामूली इजाफे के बाद बेशतर ममालिक में पाबंदियां मजीद सख्त कर दी गई हैं। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक दुनिया भर में अब तक कोरोना से मुतासिर होने वाले 12 करोड़ 14 लाख अफराद में से 26,85,000 लुक़मा अजल बन चुके हैं, जबकि 9 करोड़ 89 लाख से ज्यादा खुशनसीब सेहतियाब हो गए हैं। अमेरिका में मुतासरा अफराद की तादाद 3 करोड़ 2.5 लाख जबकि हलाकतें 5.5 लाख तक पहुंच गई हैं। ब्राजील में 2,83,000 हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि मुतासरा अफराद की तादाद 1 करोड़ 16 लाख से ज्यादा है। सूरत हाल की संगीनी के पेश नजर दारुल हुकूमत समेत कई रियासतों में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। भारत में कोरोना की तीसरी लहर के बाइस अब तक हलाकतों के हवाले से बताया जा रहा है कि हुकूमत सतह पर अदम तवज्जो और अवामी शऊर में कमी के बाइस मुतासरा अफराद की तादाद में इजाफा हो रहा है। आगे बढ़ेंगे, खबर आप तक पहुंचाएं कि आजादी सहाफत और मीडिया को दरपेश मसाइल के हवाले से इस्लामाबाद में सेमिनार का इनेकाद किया गया। वफाकी वजीर चौधरी फवाद हुसैन, सेनेटर शिबली फराज और दूसरे मुकर्ररीन ने कहा कि इज़हार राय की आज़ादी के साथ सहाफ़ियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ भी जरूरी है। कोरोना वबा के दौरान सहाफ़ियों ने बेहतरीन खिदमत अंजाम दी। मजीद क्या कुछ कहा गया, रिजवान आरिफ से जानते हैं।
PFUJ के ज़ेरे एहतमाम सेमिनार से खिताब करते हुए वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि दुनिया में जदीद टेक्नोलॉजी के बाइस मीडिया की रफ्तार बहुत तेज हो गई है। शोबे सहाफत से वाबस्ता अफराद को जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में महारत हासिल करनी चाहिए। मुस्लिम वर्ल्ड में तो कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता इन आज़ादियों का, थर्ड वर्ल्ड में कोई तस्वुर नहीं कर सकता इन आज़ादियों का। और इस वक्त जो लड़ाई हमारी जमहूरियत में भी है वो भी इसलिए है कि हम कहते हैं कि यहाँ फर्स्ट वर्ल्ड स्टैंडर्ड होने चाहिए जमहूरियत के, जो एक्चुअली पाकिस्तान की सुप्रीमेसी को जाहिर करता है। इस साल पहली बार जो गवर्नमेंट है वो अपनी डिजिटल पॉलिसी जो है वो लेके आ रही है। तो एडवर्टाइजमेंट का एक बजट जो है वो डिजिटल की तरफ भी जाएगा और पिछले अगले 5 सालों में रेस्ट श्योर, हमें अच्छा लगे या बुरा लगे, फॉर्मल मीडिया से जो डिजिटल मीडिया की एडवर्टाइजिंग है वो बड़ी हो जाएगी। सेनेटर शिबली फराज ने अपने खिताब में कहा कि हुकूमत आज़ादी इजहार राय को अहमियत देती है। सहाफत बहुत चैलेंजिंग शोबा बन चुका है। उन्होंने कहा कि हुकूमत सहाफियों के मसाइल के हल के लिए कोशां है। हमारी हुकूमत की ये कोशिश है, भरपूर कोशिश है कि आज़ादी इजहार और जो मीडिया और प्रेस के साथ ताल्लुक है वो बेहतर भी हो, क्योंकि उसके बगैर इस आपके जो इदारे के बगैर किसी भी पॉलिटिकल हुकूमत को और जमहूरियत को वो पजीराई मिल ही नहीं सकती है, वो मजबूती मिल ही नहीं सकती है जो कि एक जमहूरी और हुकूमती मसाइल होते हैं, जो भी उसकी कारकर्दगी है उनकी बगैर हो नहीं सकता। असल चीज क्या है कि हम अवाम के मसाइल को उजागर करें बनिस्बत सिर्फ एक मखसूस सब्जेक्ट को या एक मखसूस इशू को लेके चले, और इससे होगा ये कि जब कोई हुकूमत अच्छा काम करे उसको भी एक्नॉलेज करना चाहिए। इस मौके पर दूसरे मुकर्ररीन का कहना था कि दुनिया में टेक्नोलॉजी के मैदान में तेजी से तब्दीलियां हो रही हैं। मुआशरे में एक दूसरे के नुक्ता नजर को बर्दाश्त करने का हौसला होना चाहिए। सहाफियों को बिला तखसीस हुकूमत और अपोजिशन पर तनकीद करनी चाहिए। रिजवान आरिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। कुछ बात करेंगे चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक संजरानी की, जिनका कहना है कि ऐवानी बाला में बलूचिस्तान और साबिका फाटा को सरबराही देना इन इलाकों का एहसास महरूमी दूर करने के लिए अहमियत का हामिल है। कराची में वज़ार कायद पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट की कार्रवाई को अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। अवामी मफाद के लिए, कानून साजी के लिए सबको साथ लेकर चलूंगा। नेशनल लेवल पे जो हमारी जो 4 बहुत बड़ी पोजीशंस हैं माशाल्लाह पाकिस्तान की, प्रेसिडेंट सिंध से हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब इस वक्त पंजाब से हैं, स्पीकर साहब खैबर पख्तूनख्वा से हैं, तो चेयरमैन सेनेट बलूचिस्तान से पहले भी मैं था, तो ये स्कीम बड़ी अच्छी थी। इमरान खान साहब ने इस दफा और मेहरबानी करते हुए मर्ज फाटा को भी एक नुमाइंदगी दी, जो मिर्जा अफरीदी साहब हैं वो वहां से हैं, ताकि ये बातें एहसास महरूमियां खत्म हो सके। डिप्टी चेयरमैन सेनेट मिर्जा मोहम्मद आफरीदी ने कहा कि कबायली अजला को सेनेट में अहम नुमाइंदगी देने पर वज़ीर आज़म इमरान खान और इत्तेहादी जमातों के मशकूर हैं। इससे पहले चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और डिप्टी चेयरमैन सेनेट मिर्जा मोहम्मद आफरीदी ने बाबा क़ौम मोहम्मद अली जिन्नाह के मज़ार पर हाज़िरी दी और फूल चढ़ाए और फातिहा ख़वानी की। नाज़रीन, यौम पाकिस्तान भरपूर अंदाज से मनाने के सिलसिले में तैयारियां जारी हैं और 23 मार्च 1940 को कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की ज़ेर सदारत मंजूर होने वाली करारदाद लाहौर ने तहरीक पाकिस्तान में नई रूह फूंक दी है। नाज़रीन, करारदाद लाहौर से बड़े सगीर के मुसलमानों में एक नया जोश और वलवला पैदा हुआ। इसी पे आपको दिखाते हैं अमजद अली की रिपोर्ट। 23 मार्च 1940 का दिन पाकिस्तान बनने की बुनियाद है, ऐसी बुनियाद जिसने दुनिया को ये बताया कि मुसलमान एक अलग कौम है और अपने हक से बखूबी वाकिफ हैं और उन्हें लेना भी जानते हैं। ये दिन बिलाशुबा तहरीक आज़ादी का अहम दिन समझा जाता रहेगा। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की मजलिस आमला ने 22, 23, 24 मार्च 1940 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का सालाना इजलास मुनक्किद करने का फैसला किया। लाहौर इकबाल पार्क के मकाम पर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सालाना इजलास में अपने लिए एक अलग खित्ते के मुतालबे की करारदाद मंजूर की गई। ये तारीखी करारदाद मौलवी फजलुल हक ने पेश की। इस करारदाद को करारदाद लाहौर का नाम दिया गया, जो बाद में करारदाद पाकिस्तान के नाम से मौसूम हुई। करारदाद में पहली दफा मुतालबा पाकिस्तान को आइन और कानून की इस्तिलाहात में बयान किया गया। उस वक्त जात पात, ऊंच नीच
और फिरकों में बटे हुए हिंदू बनियों ने न सिर्फ मुसलमानों पर जिंदगी तंग कर दी थी, बल्कि दीगर अकलियतों जिनमें ईसाई भी शामिल थे उनका जीना भी मुहाल कर दिया था। मोहम्मद अली जिन्ना की सियासी बसीरत की वजह से करारदाद की तैयारी से लेकर तमाम मामलात बखैर व आफियत तय पा गए। करारदाद लाहौर में बड़े सगीर में बसने वाले मुसलमानों ने एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुमलिकत के क़याम का मुतालबा किया था ताकि मुसलमानों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ हो सके और वो अपने इस्लामी असूलों के मुताबिक आज़ाद, मुआशी, मुआशरती और खुद मुख्तार जिंदगी बसर कर सके। करारदाद पास होने के 7 साल बाद बिल आखिर पाकिस्तान का वजूद अमल में आया, जो 2 कौमी नजरिए या मजहब की बुनियाद पर मुआर्ज़े वजूद में आने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन गया। अमजद अली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। अब आपको बताएं कि कुवैत के वज़ीर ख़ारिजा शेख डॉक्टर अहमद नसराल मोहम्मद अल सबा कल से पाकिस्तान का 2 रोज़ा दौरा कर रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक ख़ारिजा, सेहत, दाखिला, तिजारत समेत मुख्तलिफ हुक्काम पर मुश्तमिल वफ्द भी कुवैती वज़ीर ख़ारिजा के हमरा होगा। दोनों ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा के दरमियान 2 तरफ़ा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि इस्लामोफोबिया के खिलाफ दिन मनाने से नस्ली इम्तियाज़ात और गैर मुल्कियों से नफरत जैसे मुश्किलात के खिलाफ वाज़ेह पैगाम जाएगा। न्यूयॉर्क में OIC राबिता ग्रुप के तहत इस्लामोफोबिया के खिलाफ आलमी दिन की मुनासबत से खिताब में वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि दिन को मनाने से तहम्मुल और बर्दाश्त, पुरअमन, बकाए बाहमी, बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी और सकाफती हमआहंगी के फ़रोग़ का पैगाम फैलेगा। सेक्रेटरी जनरल को बढ़ते हुए इस्लामोफोबिया के इंसदाद और बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी के फ़रोग़ के लिए आलमी मुज़ाकरे का इनेकाद करना चाहिए, जिससे आपस में बातचीत की हौसला अफजाई हो। रुख करेंगे मकबूजा जम्मू कश्मीर का। आपको बताएं कि कुछ जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने मकबूजा कश्मीर में भारत की बढ़ती रियासती दहशतगर्दी पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि मोदी हुकूमत ने रियासती आवाम के खिलाफ भरपूर जंग छेड़ी है और मुहासिरों और खाना तलाशियों की आड़ में कत्ल गारत का बाजार गर्म कर रखा है। श्रीनगर से एक बयान में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के वर्किंग वाइस चेयरमैन गुलाम अहमद गुलजार ने कहा कि मकबूजा इलाके में कत्ल गारत, गन पाउडर, कीमियाई हथियारों और दूसरे धमाका खेज मवाद के इस्तेमाल से गाँव के गाँव नजर आतिश करने की मजम्मत की और फौजी कार्रवाई को इंसानियत के खिलाफ संगीन जंगी जर्म करार दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फौजियों ने मुख्तसर वक्फे के बाद शुपैया के इलाके रावलपुरा में आज एक बार फिर तमाम दाखिली और खारजी रास्तों की नाकाबंदी करके घर घर तलाशी ली और इससे कबल भारतीय फौजियों ने इसी इलाके में 3 दिन तक जारी रहने वाली कार्रवाई के दौरान कीमियाई मवाद इस्तेमाल करते हुए 2 नौजवानों को शहीद और दर्जनों मकानों को तबाह कर दिया था। कठपुतली इंतजामिया ने शुपैया के इन खानदानों के तमाम बैंक अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए हैं जिनके घरों को धमाकों से उड़ाया गया था। श्रीनगर, शुपैया, पुलवामा, बडगाम, गांदरबल और बांडीपुरा के मुख्तलिफ इलाकों में तलाशी की कार्रवाइयां जारी हैं और घरों पर छापे मारे गए, लूटमार की गई और मकीनों खुसूसन खवातीन को हिरासत किया गया। बदनामे जमाना तहकीकाती इदारे NIA ने पैरामिलिट्री फोर्सेज के एहलकारों के हमरा पुलवामा के इलाकों हरीपुरा और हाजीबल में बशीर मागरे और इंशाजान के घरों पर छापे मारे और मकीनों को हिरासत किया और बेबुनियाद इल्जामात पर घरों को जब्त भी कर लिया। भारत में जालिमाना ज़राए क़वानीन के खिलाफ किसानों का एहतजाज जारी है और अब किसान क़यादत ने दिल्ली नोएडा बॉर्डर्स ब्लॉक करने की धमकी दे दी है। किसान यूनियन के रहनुमा रक्षी शकेत ने कहा कि पहले हम सिर्फ अपने हुकूक की जंग लड़ रहे थे, लेकिन अब पूरे आवाम को हर धर्म मोदी सरकार से निजात दिलाने के लिए पूरे भारत में मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जाएगी। उधर अमरीकी कांग्रेस की रिपोर्ट में भारत की मजमूई सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में जमहूरियत और इंसानी हुकूक की बिगड़ती सूरत हाल पर बाइडेन इंतजामिया को भारत और बहरुल काहिल के बारे में अपनी पॉलिसियां मुरतब करने में चैलेंज पेश आ सकता है। और फजाई आलूदगी पर नजर रखने वाले आलमी इदारे IQ एयर ने भारतीय दारुल-हुकूमत नई दिल्ली को दुनिया का गलीज तरीन शहर करार दे दिया है। स्विट्जरलैंड में कायम इदारे की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली ने मुसलसल तीसरे साल फजाई आलूदगी, तहफ़्फ़ुज़ और ग़लाज़त में पहला नंबर बरकरार रखा। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना लॉकडाउन के बावजूद दिल्ली में फजाई आलूदगी की शरह इंतहाई खतरनाक है और गुज़श्ता 1 साल के दौरान गंदगी और आलूदगी के बायस 54,000 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि अस्पताल मरीजों से भरे पड़े हैं। इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग के ज़ेरे एहतमाम मुख्तलिफ सेशंस में से खिताब करते हुए मुआविन खुसूसी कौमी सलामती डॉक्टर मोइद यूसुफ और मुशीर तजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने कहा है कि पाकिस्तान इलाकाई अमन का सबसे बड़ा हामी है, ताहम अपने कौमी मफादात को नजरअंदाज नहीं कर सकते। उन्होंने ये भी कहा कि मौजूदा हुकूमत इक़्तिसादी सिफारतकारी के जरिए कौमी सलामती का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। इस्लामाबाद डायलॉग के पहले दिन की कार्रवाई की तफसील राना शहजादुस्सलाम से। 2 रोज़ा इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग के पहले सेशन में कलीदी खिताब करते हुए कौमी सलामती के लिए वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी डॉक्टर मोईद यूसुफ ने कहा कि पाकिस्तान की जामे सिक्योरिटी के हसूल के लिए बुनियादी नुक्ता माशी सिक्योरिटी को यकीनी बनाना है। The one deficiency that I would admit
perhaps is that we have not had this strategic vision, which is essentially comprehensive security framework in any country. But the debate is how to achieve comprehensive national security, what this framework looks like. That comprehensive security is essentially a combination of traditional and non-traditional security. Unless you have national unity and cohesion, there can't be any conversation about security in a country. पहले सेशन में सीनियर सफारतकारों रियाज खोखर, रियाज मोहम्मद खान, पाकिस्तान में अमेरिका के साबिक सफीर कैमरून मंटर और रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रियाज ने जामे कौमी सलामती के उन्वान पर अपने मकालाजात पेश किए। दूसरे सेशन के मेहमान खुसूसी वजीर आजम के मुशीर अब्दुल रज़ाक दाऊद ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि तारीख बताती है कि माशी बदहाली और सियासी अदमी इस्तेहकाम रियासतों के लिए तबाही का बुनियादी सबब बना है। We are reaching out to Afghanistan, we're reaching out to Iran, we're reaching out to Uzbekistan, through Uzbekistan to the Central Asian republics. From the Central Asian republics, we move into go west into the Russian Federation and another approach to Europe. दूसरे सेशन में रिटायर्ड एयर चीफ मार्शल तलीम सादत, डॉक्टर शमशाद अख्तर, डॉक्टर उस्मान चौहान, अमरीकी प्रोफेसर डॉक्टर माइल्स, डॉक्टर जो आरडी और हारून शरीफ ने इकनॉमिक सिक्योरिटी और ग्लोबलाइजेशन के मौजू पर अपने मकालाजात पेश किए। राना शहजादुल पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज इस्लामाबाद। बात करेंगे वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की, जिनका कहना है कि अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान आना चाहते हैं तो उन्हें 24 घंटे के अंदर अंदर सफरी दस्तावेजात फराहम की जा सकती हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की जानिब से इस हवाले से इज़हार ख्याल किया गया और उन्होंने इस हवाले से बात करते हुए कहा कि अपोजिशन एहतजाजी सियासत के बजाय इलेक्शन इस्लाहात के लिए तजावीज़ दे। मौजूदा हुकूमत के खिलाफ एजेंडा तो उनका एक ही था, इमरान खान सियासी तौर पर हैवी वेट है, इनसे अल्लाह के हुक्म से अल्लाह की मदद से नहीं गिरने जा रहा था। 6 महीने से टीवी खेल रहे हैं। मैंने फजलुर रहमान साहब से कहा था कि आपसे हाथ होगा। अगर नवाज शरीफ साहब को एमरजेंसी ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट चाहिए तो हम 24 घंटे में इस्लामाबाद आने के लिए या पाकिस्तान के किसी जगह आने के लिए वो जारी कर सकते हैं। शेख रशीद अहमद ने कहा कि पाकिस्तानियों के लिए 2011 से कुवैत के वीजे बंद थे, जिनका जल्द इजरा शुरू हो जाएगा। इक़्तिसादी राबता कमेटी ने 3 लाख मीट्रिक टन गंदम दरामद करने की मंजूरी दे दी है। इस्लामाबाद में वज़ीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की सदारत में होने वाले इजलास में ECC ने नया पाकिस्तान हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की समरी मंजूर करते हुए 1 लाख घरों की तामीर के लिए अहलियत के तरीक़ाकार और सब्सिडी की अदायगी की भी मंजूरी दी। स्टेट बैंक की सिफारिश पर कमेटी ने सस्ते और मयारी घरों के हुसूल के लिए अहलियत के मयार में नरमी और सरमाए की फराहमी की मार्केट सब्सिडी स्कीम की भी मंजूरी दी। और नाज़रीन, बेघर अफराद को छत फराहम करने के लिए अमली इकदाम का आगाज कर दिया गया है। नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट के तहत कम आमदनी वाले 1500 बेघर अफराद को मिल्कियती हुकूक देने का आगाज किया जा रहा है। इसी बारे में तफसील जानते हैं राहिल अंसार से। और अब आप इंशाल्लाह देखेंगे कि मुसलसल हम इसके हाउसिंग के डिफरेंट जगह के ऊपर हम लॉन्च करते जाएंगे, डिफरेंट हाउसिंग स्कीम जो कि सारे पाकिस्तान में अब चलेंगे। जान से प्यारा है इसका एक जरा, जान से प्यारा है। इस्लामाबाद के जोन 5 में वर्कर्स वेलफेयर फंड के तहत सनती मजदूरों को कुरानंदाजी के जरिए 1000 घर और 500 फ्लैट्स अलॉट किए जाएंगे। वज़ीर आज़म के मुआवन ख़ुसूसी सैयद जुल्फ़िकार अब्बास बुखारी ने बताया कि मंसूबा 2011 में साबिका हुकूमत के दौर में शुरू किया गया था और इसकी सुस्त रवि की वजह साबिका हुकूमतों का इस मेगा मंसूबे के जरिए अवाम का पैसा लूटना था। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने बरसरे इक़्तिदार आते ही इस मंसूबे को तरजीही बुनियादों पर इंतहाई कम वक्त में मुकम्मल किया, जबकि इन घरों की फराहमी में शफाफियत को भी यकीनी बनाया गया है। सैयद जुल्फ़िकार अब्बास बुखारी ने कहा कि नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट के तहत इस मंसूबे के लिए बैंकों से आसान शराइत पर कर्जों की सहूलत भी फराहम की गई है। उन्होंने कहा कि माजी के बरक्स
अब ये घर मलकियती हकूक की बुनियाद पर दिए जा रहे हैं। सनती मजदूरों को फराहम किए जाने वाले घर 775 मुरब्बा फुट और फ्लैट 750 मुरब्बा फुट पर मुश्तमिल होंगे, जिनमें 2 कमरे, बावर्चीखाना, लाउंज और बाथरूम शामिल हैं। 2560 कनाल पर मुहित लेबर कॉम्प्लेक्स में मस्जिद, यूटिलिटी स्टोर, कम्युनिटी सेंटर, डिस्पेंसरी, स्कूल, कॉलेज और पार्क समेत पानी और सीवेज के मुकम्मल निजाम जैसी सहूलतें भी फराहम की गई हैं। राहिल अंसार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। नाज़रीन, मुल्क की मैशत से मुताल्लिक अच्छी खबर है। कारोबारी हफ्ते के तीसरे दिन भी रुपए की कदर में इस्तेहकाम रहा और इंटरबैंक में डॉलर की कीमत खरीद 156 रुपए, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत खरीद 155 रुपए 57 पैसे रही है। आपको ये भी बताएं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी तेजी का रुझान बरकरार है और 100 इंडेक्स में 593 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। इसकी तफसील ज़ीशान अहमद खान से। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से रोशन डिजिटल अकाउंट्स में कैश एंड फ्लो और मुल्की और गैर मुल्की अफराद के कसीर तादाद में अकाउंट्स खोले जाने और मुल्क की मईशत के दुरुस्त में गामजन होने का असर पाकिस्तानी रुपए पर पड़ रहा है और डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में दिन ब दिन मजीद इस्तेहकाम देखा जा रहा है। आज इंटरबैंक में डॉलर की कीमत खरीद 156 रुपए रही। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत खरीद 155 रुपए 57 पैसे, जबकि कीमत फरोख्त 156 रुपए 6 पैसे थी। डॉलर की कीमत में अब तक 13 रुपए की कमी हो चुकी है, जबकि रुपए की कदर में इस्तेहकाम जारी है और डॉलर 168 रुपए से कम होकर 156 रुपए तक आ गया है। दूसरी जानिब स्टॉक एक्सचेंज में भी तेजी का रुझान जारी है और 100 इंडेक्स 593 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 45,450 की सतह पर पहुंचकर बंद हुआ। माशी तज्जियाकारों का कहना है कि स्टॉक मार्केट में तेजी और रुपए की कदर में इस्तेहकाम मौजूदा हुकूमत की मुस्बत मौशी पॉलिसियों का नतीजा है। रोशन डिजिटल अकाउंट एक बहुत शानदार इनिशिएटिव है स्टेट बैंक का और उसके अंदर बाकी सारे इदारे और अथॉरिटीज ने भी अपना रोल प्ले किया। हमारी तो एफर्ट ये है कि ये बिलियंस में जाए। तो इस वक्त हम एक अच्छे पर्पल पैच से गुजर रहे हैं। इस वक्त इक्विटी मार्केट का केस इतना स्ट्रांग आज है, पहले कभी नहीं था। बाजार हिस्सेस में आज 1,78,214 शेयर का कारोबार हुआ, जिनकी मालियत 24 अरब 93 करोड़ 37 लाख रुपए से ज्यादा रही, जबकि कारोबारी हजम 51 करोड़ रुपए से ज्यादा रहा। मार्केट में 217 कंपनियों के शेयर की कीमतों में इजाफा, 83 कंपनियों के शेयर की कीमतों में कमी, जबकि 19 कंपनियों के शेयर की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई। ज़ीशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। और अभी आपको बताएं कि हुकूमत की जानिब से यूटिलिटी स्टोर्स पर आवाम को रिलीफ की फराहमी के लिए रमजान पैकेज पर 1 अप्रैल से अमल दरामद शुरू हो जाएगा। इसी बारे में तफसील जानते हैं राना इफ्तिखार अहमद से। विफाकी कबीना ने गुज़िश्ता रोज रमजान मुबारक के दौरान अवाम को सस्ते दामों अशियाए जरूरिया की फराहमी के लिए 7 अरब 80 करोड़ रुपए के रमजान पैकेज की मंजूरी दी, जिसके तहत मुल्क भर में 4000 से जायद यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, घी, कुकिंग ऑयल, चीनी, चाय, चावल और दालों समेत 19 अशिया की कीमतों में नुमाया कमी की जाएगी। पिछले साल से जो चल रहा था वो 5 आर्टिकल्स पे थी जनवरी से लेकर अब तक, लेकिन अब रमजान की वजह से हर साल की तरह ये 19 आर्टिकल्स पे होगी। चीनी 68 की थी जनवरी में लास्ट ईयर, आज भी 68 की है, रमजान में भी 68 की होगी। आटा 800 रुपए का है, घी में 170 रुपए का पर किलो होगा। मिनिमम रिलीफ है जी वो 7% है और कुछ ऐसी अशिया भी हैं जहाँ 12 से 13 बल्कि 14% का भी रिलीफ है। अवाम ने हुकूमत की जानिब से अशियाए जरूरिया की सस्ते दामों मुसलसल फराहमी को सराहते हुए कहा है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर मार्केट के मुकाबले में कीमतें कम हैं। जो भी बेसिक चीजें हैं ना जी जरूरियात की, वो सब इसमें शामिल है। आटा 20 किलो वाला 800 रुपए का, जो कि मार्केट में 1250-1300 रुपए का मिलता है। आटे की क्वालिटी बिल्कुल बेहतरीन है। मैं तो काफी हफ्ते से यही यूटिलिटी स्टोर से ही शॉपिंग करती हूँ। यूटिलिटी स्टोर में आम मार्केट शॉप में बहुत फर्क है। दालें, चावल वगैरह सब कुछ सस्ता है, मतलब कि बाहर तो बहुत महंगा। अच्छी बात ये है कि चीजें सारी मिल जाती हैं। वो मुख्तलिफ अफवाहें सुनते हैं कि फलां जगह ये खत्म हो गया, किसी एक पे खत्म हो जाता है, वो कोई बात नहीं, लेकिन जनरली मिल जाती हैं चीजें। मैं जब भी आता हूँ यहाँ हर चीज मिल जाती है। रमजान मुबारक के दौरान मुल्क के दूर दराज इलाकों में अवाम को अशियाए जरूरिया की फराहमी के लिए मोबाइल यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए तरसील की जाएगी। रमजान पैकेज के तहत यूटिलिटी स्टोर्स पर अशियाए जरूरिया की दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए खुसूसी इक़दाम किए गए हैं। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। नाज़रीन, मुल्क में कारोबार की तरक्की और मुआशी शरह नमो में इजाफे के लिए हुकूमत ने छोटे कारोबार से लेकर कारखानों तक को मराद दी है।
खैबर पख्तूनख्वा में इसी पॉलिसी के दूररस असरात मुरतब होते दिखाई देते हैं। किस तरह, मोहम्मद शाहिद बताएंगे। गुर्बत का खात्मा हो या समाजी तरक्की, अदम मसावात को कम करना हो या बेरोजगारी में कमी, बड़े और दरमियानी दर्जे की सनतें माशी तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। मौजूदा वफाकी और सूबाई हुकूमत की जानिब से स्पेशल इकनॉमिक जोन या खुसूसी इक्तिसादी जोन के क़याम से बेरोजगारी और गुर्बत के खात्मे में मदद मिलेगी। 4 प्रोजेक्ट अब मेच्योरिटी के स्टेज में है, कुछ हम ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी पे जा रहे हैं और कुछ में 2-3 महीने लग सकते हैं। एक ही इकनॉमिक जोन था, 3 का मैंने इनागुरेशन कर दिया है, 2 नौशेरा में, 1 DI खान में, फिर मैं बनू की तरफ जा रहा हूँ। ये हतार 2 है, गाजी है, चतराल में है, बुनेर मार्बल सिटी है, ऑलरेडी मैं इसका कर चुका हूँ। तो इंशाल्लाह 6, 7, 8 मैं आपको इकोनॉमिक जोन दूंगा ताकि मुल्क में जो बेरोजगारी है उसको हम किसी न किसी तरीके से कवर कर ले, और अगर वो कवर करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ ये इंडस्ट्रियल जोन्स के जरिए हम कर सकते हैं, बाकी पब्लिक सेक्टर में इतनी जॉब्स अवेलेबल नहीं है। माशी तरक्की में स्पेशल इकनॉमिक जोन के किरदार को मुतनज़्ज़िर रखते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने रशकई इकनॉमिक जोन के क़याम की मंजूरी पहले ही दी है। रशकई इकनॉमिक जोन के साथ DI खान, बनू, खत्तार 2, गाजी, चतराल और बुनेर मार्बल सिटी समेत कई खुसूसी इक्तिसादी जोन के क़याम पर काम जारी है। पिछले गवर्नमेंट में सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट था इकोनॉमिक जोन के हवाले से और वो रशकई का था। ये अल्लाह ने फजल किया कि फेडरल गवर्नमेंट हमारी आई और मैं प्राइम मिनिस्टर साहब का मशकूर हूँ कि उन्होंने उसमें हमारी मदद की और रशकई का प्रोजेक्ट हमने अप्रूव करवाया। इंशाल्लाह अगले हफ्ते प्राइम मिनिस्टर साहब आएंगे, उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी वो करेंगे। हुकूमत के इदारा जाती और माशी इस्लाहाती एजेंडे के समरात अवाम तक पहुँचना शुरू हो गए हैं। मौजूदा हुकूमत की जानिब से सस्ती बिजली की फराहमी, इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की और आसान शराइत पर कर्जों की फराहमी समेत सरमायाकार दोस्त पॉलिसियों से मुल्क में सरमायाकारी में मजीद इजाफा होगा। मोहम्मद शाहिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पिशावर। अभी आपको खबर दें कि सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस में नजरसानी केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी है। दौरान समाअत अपनी दरख्वास्त पर दलाइल देते हुए जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सोशल मीडिया के जरिए उनकी और उनके खानदान की शोहरत को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया गया। अवाम को उनके खिलाफ झूठे इल्जामात के हकायक से आगाह होना चाहिए, जिसके लिए उनके मुकदमात की समाअत को बराह रास्त नशर करना जरूरी है। जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया ने दलाइल में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बरतानिया के फ्लैट्स उन्होंने ज़ाती आमदन से खरीदे, लेकिन उनकी जायदादों को उनके शोहर से मंसूब कर दिया गया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने दलाइल देते हुए अदालती कार्रवाई बराह रास्त दिखाने की मुखालफत की। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कासिम अली। नाज़रीन, आपको आगाह करें कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। ताहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर बारिश और बुलंद पहाड़ों पर बर्फबारी की तवक्को है। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत लैब -2, कालाम, गोपस 0 और अस्तूर में 1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मौसम का हाल आप जान चुके हैं, रुख करेंगे वापस मेन डेस्क का। बहुत शुक्रिया कासिम आपका। नाज़रीन, अभी आपको खबर दें कि ऐवान सनत और तिजारत इस्लामाबाद और नफ्स यूनिवर्सिटी ने सनती शोबे में तहकीक को फरोग देने के लिए मुफाहमत की याददाश्त पर इस्लामाबाद में दस्तखत किए हैं। इसके तहत दोनों इदारों ने तहकीक के ऐसे मुश्तरका मंसूबों पर काम करने पर इत्तेफाक किया जिससे सनती शोबे के अहम मसाइल को हल करने में मदद मिलेगी। इस्लामाबाद चैम्बर के सदर सरदार यासिर तनवीर इलियास ने कहा कि इदारों के दरमियान मजबूत रवाबित कायम करके सनती शोबे के मसाइल को हल किया जा सकता है। और कानून और इंसाफ के बारे में कौमी असम्बली की कायम मकाम कमेटी का इजलास चेयरमैन रियाज फतियाना की सदारत में इस्लामाबाद में हुआ, जिसमें कानून साजी से मुताल्लिक उमूर ज़ेर गौर आए। कायमा कमेटी ने तफसीली गौर के बाद मुत्तफिका सिफारिश की है कि स्पेशल रिलीफ एक्ट तरमीमी बिल कौमी असम्बली से मंजूर किया जाए। पार्लियामान की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास राना तनवीर हुसैन की सदारत में पार्लियामेंट हाउस में हुआ। इस इजलास में वज़ारत दाखिला के माली साल 18-19 के ऑडिट इतराज़ात का जायजा लिया गया। और पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की ज़ेली कमेटी का इजलास कन्वीनर सैयद नवीद कमर की सदारत में हुआ। इजलास में पेट्रोलियम डिवीजन के ऑडिट एतराज़ात और ग्रांट्स का जायजा लिया गया। AGPR हुकाम ने कमेटी को बताया कि 12 अरब की ग्रांट्स लैप्स हुई हैं और कमेटी ने मुख्तलिफ ऑडिट एतराज़ात पर दोबारा महकमाना अकाउंट्स कमेटी का इजलास मुनक्किद करने की हिदायत की है।